Welcome to my channel. ایک نوجوان جو 2 بار شادی کر چکا تھا، اس کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا جو اپنی ماں کی وفات کے بعد فوجی بننا چاہتا تھا اور دوسرے ملک جانے کی خواہش کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا اگر زندہ رہا تو واپس آؤں گا۔ اس کے والد نے اسے دعا دی اور اس کی امی کی انگوٹھی دیتے ہوئے کہا، اس انگوٹھی کو اپنی پاس رکھو اور دنیا میں جہاں بھی جاؤ یا اور میں جتنا بھی بوڑھا ہو جاؤں، جب بھی تم واپس ہوگے تو تم مجھے یہ انگوٹھی دکھاؤ گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم میری بیٹی ہو، میری وارث ہو۔ کچھ عرصے بعد والد نے دوبارہ شادی کی۔ اس دوسری بیوی سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ سالوں گزر گئے اور بڑا بیٹا واپس نہیں آیا۔ آخر کار ہر کوئی اسے مردہ کہنے لگا، لیکن حقیقت میں وہ زندہ تھا اور بہت دیر بعد وہ گھر کی طرف رخ کرتا ہے۔ زیادہ عمر اور سفر سے وہ بہت تبدیل ہو گیا تھا، اسے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ اس نے انگوٹھی کو اپنے گلے میں رسی کے ساتھ گردن میں ڈال رکھا تھا۔ ایک رات ایک جھونپڑی میں وہ صبح تک سویا رہا اور جب صبح ہوئی تو گردن میں رسی نہیں تھی اور نہ ہی انگوٹھی تھی۔ وہ سارا دن تلاش کرتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سارا واقعہ اپنے والد کو بتائے گا۔ اس کے والد نے سارا واقعہ سنا اور خوشی سے اپنے بیٹے کو قبول کر لیا، لیکن دوسری بیوی کے لیے تو یہ دوسرا ہی تھا۔ وہ بڑے بیٹے کو خاوند کی دولت کا وارث نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے بڑی چلاکی سے بوڑھے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ وہ بیٹے کو کہے کہ وہ پہلے اس کی دی ہوئی نشانی یعنی انگوٹھی لے کر آئے، پھر وہ وارث بنے گا۔ بیوی نے کہا، اس گھر کو میں نے بہت مشکل سے بنایا ہے اور اب کوئی بھی گندی کپڑوں میں گلی سے اٹھ کر آ جائے کہ میں اب کا بیٹا ہوں تو کیا ہم اسے قبول کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا فوجی کو جلد ہی بھگا دیا گیا، مگر اس کا والد اس کے پیچھے گیا، اسے کچھ پیسے دیے اور کہا، اللہ کے سپرد ہو تم بیٹا اور جلد انگوٹھی ڈھونڈ کی لانا۔ کہ اتوار کا دن تھا۔ ایک مولوی صاحب مسجد میں اذان دینے کے لیے جا رہے تھے۔ اس نے نوجوان کو افسردہ دیکھا تو کہا، آپ کو کوئی پریشانی ہے کیا؟ جی ہاں، مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے اور جائیداد بھی نہیں دے رہی، جبکہ اصل وارث میں ہی ہوں۔ فوجی بہت غمگین بیٹھا تھا۔ سورج بھی اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ پودوں کی ٹہنیاں سفید پھولوں سے بھری ہوئی تھیں اور بہار اس وقت عروج پر تھی، لیکن فوجی کا دل کسی بھی بہار میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ 3 دن اور 3 راتیں گھومتا رہا، پھر وہ سیاہ اندھیرے جنگل کی طرف نکل جاتا ہے کہ اسے ایک کمزور سی عورت ملی جو لکڑیوں کا بنڈل اپنی کمر پر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے بھاری ہے، اچھی ماں۔ لکڑیاں اٹھانے میں بوڑھی عورت کی مدد کی۔ بوڑھی بولی، کیا تم یہاں ابھی آئے ہو؟ اور فوجی سے کہنے لگی کہ تم جس بھی کام آئے ہو اس میں دیر نہیں کرو اور جلدی آگے بڑھو۔ تھوڑا سا آگے اسے ایک دیو ملتا ہے جو درخت کی چوٹی پر جانور کی کھال کھا کر ابھی فارغ ہی ہوا تھا۔ یہ دیو لمبا چوڑا اور عجیب قدامت والا ہوتا ہے، مگر اس نے نہایت تمیز سے کہا کہ نوجوان، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کام کی ضرورت ہے۔ دوست، کیا تم میری خدمت پر نوکری قبول کرو گے؟ فوجی نے جواب دیا، مجھے 2 چیزیں جاننی ہیں، کام اور اجرت۔ دیو نے کہا، تمہارا کام اس جنگل میں راستہ کاٹنا ہے دوسری طرف جانے کے لیے، مگر تمہارے پاس 1 سال اور 1 دن کا وقت ہوگا۔ اگر تم نے اسے وقت پر مکمل کر لیا تو دوسری طرف ایک گھونسلہ ہے جس میں تاج کی تلاش ہے، اور اگر وقت
पर ये चीज़ें बादशाह के पास ले गए तो तुम्हें किसी उजरत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास माल और जेवर की कमी भी ना रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर काम मुकम्मल नहीं हुआ तो तुम इसके बाद मेरे ग़ुलाम बनोगे, वो भी बग़ैर उजरत के। ये मुश्किल मुआहदा है, फौजी ने कहा, लेकिन ज़रूरत के लिए कुछ भी करना पड़ेगा और मैं इसके लिए तैयार हूँ। जब वो दियो के घर आया तो इसने एक बूढ़ी और ज़ईफ़ औरत को देखा। औरत ने भी इसे नहीं पहचाना, लेकिन फौजी को अंदाज़ा हो गया कि ये दियो की बीवी है जो अपने खामद से बहुत डरती है और जो इस पर बहुत जुल्म भी करता है। कल से तुम्हारा काम शुरू होगा, दियो ने कहा। जो आपकी मर्जी, फौजी ने जवाब दिया, और वो सोने से पहले औरत के लिए पानी और लकड़ी भी लेकर आया। मुसीबत में भी रिश्ता होता है, फौजी ने कहा। अगली सुबह दियो फौजी को जंगल के एक ख़ास हिस्से में ले गया और इसे कल्हाड़ी दी और कहने लगा, जितने जल्दी शुरू करो इतना है तुम्हारे लिए बेहतर है, और शुरू करने के बाद तुम्हें ये मुश्किल भी नहीं लगेगा। ये कहकर इसने एक दरख्त को बड़ी आसानी से एक फूल की तरह तोड़ दिया। तुम्हारे लिए तो ये आसान है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल, फौजी ने जवाब दिया। जब दियो चला गया तो इसने काम शुरू किया। बहुत ज़ोर लगाने और खुशी खुशी काम करने के बावजूद भी फौजी बहुत थक चुका था और इसने महसूस किया कि दरख्त बहुत सख्त है। और जब वो वापस रात को दियो के घर आया तो दियो ने कहा कि कैसा रहा आज का काम। फौजी ने जवाब दिया, दरख्त बहुत सख्त है। यही सब कहते हैं, मुझे तो हमेशा निकम्मे नौकर है मिले हैं। दियो ने जवाब दिया, मैं दूसरी दफ़ा सुस्ती नहीं करूँगा, फौजी ने सोचा। और अगले दिन वो जल्दी चला गया और इसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजा फिर इतना अच्छा नहीं रहा। और जब वो थक कर घर वापस आया तो इसे अंदाज़ा हुआ कि दियो बहुत खुश है। ऐसे ही कुछ देर तक चलता रहा। एक सुबह काम पर जाते वक्त देखा कि बूढ़ी औरत फिर लकड़ियां काट रही थी। बात सुनो, बूढ़ी औरत ने कहा, दियो तुम्हारे साथ दूसरे नौकरों की तरह का ही सलूक करेगा, लेकिन जहां दरख्त काट रहे हो वहां से तुम गिन कर 70वें दरख्त से काटना शुरू कर दो और पीछे वाले दरख्त ना काटना, लेकिन दियो को ना बताना कि तुमने नई जगह से काटना शुरू किया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज़ाना पुरानी जगह से काटते रहना। इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करता वो गायब हो गई। बगैर किसी देर के फौजी ने पुरानी जगह से 70 तक गिनकर दरख्त छोड़े और 70वें दरख्त पर ज़ोर से कुल्हाड़ी मारी तो वो कट गया और दूसरे दरख्त बहुत आसानी से एक कुल्हाड़ी मारने से ही नीचे गिरने लगे। इसके बाद थोड़ा सा काम पुरानी जगह पर भी किया और फिर घर आ गया। आज वो बहुत खुश था, लेकिन दियो के सामने वो उदास ही नजर आया कि इसे कोई शक ना हो। दिन ब दिन वो जंगल की गहराइयों में लकड़ियां काटता रहा। दरख्त उसके सामने गिरते रहे। दरख्त इस तरह गिरते रहे कि जैसे कोई सूखी हुई बेल के तने। अब इसके काम का सबसे मुश्किल हिस्सा था, जो पीछे जाकर काम करना था। वो दियो के घर से बाहर निकला, लेकिन जंगल से, क्योंकि जंगल से रास्ता बन चुका था। लेकिन दियो से पहली मुलाकात से लेकर 366 दिन के बाद फौजी ने जंगल काट कर खुला मैदान का सा एक रास्ता बना दिया था। जंगल कटा तो रोशनी भी जंगल में आना शुरू हुई। कई परिंदे उड़े, उनमें से मीना भी था।
जब वो उड़ा तो मीना के घोंसले में से इसे माँ की अंगूठी नजर आई। इसी घोंसले में इसे बहुत सारे कीमती पत्थर भी मिले जो कि बेशुमार कीमत के थे। ये बादशाह की खोई हुई नायाब चीजें थीं और अब जब दियो के साथ किए गए मुआहदे का वक्त भी खत्म हो गया था तो इसे जाने में कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन अंगूठी और बेशकीमत जेवरात इसने अपनी जेब में डाल लिए। वापसी पर रास्ते में इसे एक दोस्त मिला जो इसे रास्ता दिखाने में इसकी मदद कर रहा था और रास्ते की कहानियां भी उसे सुनाता जा रहा था। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक शाही सवारी बादशाह के महल से बाहर निकल रही थी। इसके दोस्त ने इसे बताया कि 2 बड़ी बेटियों की पड़ोसी शहजादों से मंगनी हो चुकी है और सबसे छोटी की किससे मंगनी हुई है, क्योंकि वो दोनों से खूबसूरत लग रही थी। फौजी ने पूछा। दोस्त ने जवाब दिया, वो कभी शादी नहीं करेगी क्योंकि इसकी शादी उससे होगी जो कीमती पत्थरों को ढूंढ कर लाएगा और रास्ता काटेगा, क्योंकि इसी जंगल ने बादशाह का सारा इलाका घेरा हुआ है और कीमती पत्थर बादशाह से जो खो गए हैं वो नहीं मिल रहे और ये जंगल जादू से भरपूर है। और फिर मैं अपनी माँ की अंगूठी लेकर इसे अपनी बीवी को पहनाऊंगा। फौजी ने सोचा, लेकिन इसने ये राज किसी से ना खोला और बादशाह के पास पेश होने के लिए कुछ लोग इकट्ठे किए। वो बादशाह के पास हाजिर हुआ और उसके गुमशुदा जेवरात उसे दिए और जंगल के रास्ते के बारे में भी बताया कि आपका इलाका साफ है। बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी का हाथ सबके सामने फौजी के हाथ में थमा दिया और जल्द ही उसकी शादी की तारीख का भी ऐलान कर दिया। क्या मैं अपने बूढ़े बाप को लेकर आ सकता हूँ बेगम साहिबा? फौजी ने एक अच्छा बेटा एक अच्छा शौहर होता है, शहजादी ने जवाब दिया। और जब वो अपने आबाई गांव में दाखिल हुआ तो सूरज चमक रहा था और घंटियां बज रही थीं। इसकी सुतेली माँ ने भी इसे खुश आमदीद कहा और इसके साथ शाही शादियों में शिरकत करना चाहिए। लेकिन इसके खामन ने कहा कि तुमने बड़ी मुश्किल से ये घर बनाया है, आज भी तुम अपने घर को संभालो, मैं खुद ही अपनी बेटे की शादी में चला जाऊंगा। दूसरी तरफ जब दियो को मालूम हुआ कि फौजी तो चला गया और रास्ता भी जंगल का बना गया है और कीमती जेवरात भी ले गया है, तो दियो भी हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से गायब हो गया। अब फौजी अपनी बीवी को साथ लेकर शहर चला गया और खुशी से दोनों ज़िंदगी गुजारने लगे।